जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी गोपी जन यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. सभी गाइए. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Govinda, Radha Govinda, Radhe. Jai Radha Govinda, Radha
जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुदर्शन जय सुभद्रा जय सुदर्शन जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय 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 प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद नाम संकीर्तन की समवेत भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंदे। सो अभी मैं आपको एक स्मॉल वीडियो दिखाऊंगा मायापुर एलिफेंट प्रोसेशन का, जो हम लोग अटेंड करने वाले हैं इस मायापुर कैंप में। सो 5 minutes video, you all see that video, and then we'll start today's session, which is very interactive session. It will be like a small what you say interaction between all of us. ठीक है, let me know अगर आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं तो। Are you able to see my screen? You can pin my screen to your devices, all of you. You're able to see my screen? Yes, no? Unmute करके बोलिए। यस प्रभु। ओके, हरे कृष्ण प्रभु। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू।
You are chanting you 10 rounds. हरे कृष्णा। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग को? तो आप यू कंप्लीट योर राउंड। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग जब मायापुर जाएंगे तो दिस विल बी आवर फर्स्ट प्रोग्राम इन मायापुर, एलिफेंट प्रोसेशन। ठीक है, हरि बोल। सो आई जस्ट डू वन स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर द सेशन। तो 25 तारीख को हम गीता जयंती है, तो यहाँ पर प्रोग्राम होने वाला है वॉइस में, आप सब लोग को पता है, राइट? सो इन वॉइस विल हैव प्रोग्राम ऑन 25th, and in the program we'll recite Bhagavad Gita shlokas from 4 o'clock to 7 o'clock in the evening, along with dinner and gifts for all of you. ठीक है, and then 25 को who all are doing night stay, they can do night stay over here, and then 26 को सुबह we leave for Mayapur. Okay, we leave for Mayapur on 26th morning. 27th we'll be there in Mayapur 2 days. Very okay. Okay, so जो लोग घर से आ रहे हैं, they should take their breakfast and come, and who all are going from Voice, will do night stay, they will all go from Voice from here, and we'll arrange breakfast for them who will be doing night stay, and timing will be around 8 to 9 o'clock. तो हम लोग आपको 25 तारीख को टाइमिंग कंफर्म कर देंगे, ओके, ट्रेन टाइमिंग. So this is the announcement, and then there will be having special programs, drama, elephant procession जो अभी आपने देखा है, and then उसके बाद special sessions होगा वहाँ पर, and then after this all these programs on 28th morning we have booked, we'll book a bus from there, and from there, from the campus, Mayapur campus से बस निकलता है, so from there we'll come back 28th morning. ठीक है. And you will be connected with your coordinators to get all information and updates. Okay. So because we have not met of many days, so and many new boys are coming, so there can be miscommunication or lack of communication. So therefore, from your side, please be connected with your coordinators, clarify all your doubts, ask if you have any question, ask the question, and inquire. Okay. So we'll send you the things to carry list. आप सब लोग को भेज देंगे हम लोग. So आप लोग के तरफ से you all should be connected to your coordinators. ठीक है. तो आपका जो भी doubts है you ask to your coordinators and be connected. Any questions, any doubts you have, you can ask your coordinators. So you want to say something?
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा दंडवत कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो टुडे इज एक्चुअली birthday of our dear Siddharth Ru. So I think he have joined. Did he join? Okay, he have joined. So we'll be Yes, Hare Krishna, Prabhu. celebrating his birthday around 8:30. So Akshay will speak till 8:30. So 8:30 we'll be having special celebration of birthday of Siddharth Ru. Hari Bol. Thank you, Prabhu. Thank you, Prabhu. So it will be a virtual celebration, and also will be distributed special cake. Siddharth will distribute special cake virtually to all of you. And future feast will be pending, so he'll be give a feast to all of you. Hari Bol. Hari Hari Bol, Bol. 100% Prabhu. Hari Bol. So special pizza feast. Hare Okay, Krishna. Prabhu. Done, Prabhu. So रिगार्डिंग 25th एंड 26th, तो जो लोग वॉइस में स्टे कर रहे हैं आपका नाइट स्टे रिकॉन्फर्म करिए योर टू योर कोऑर्डिनेटर्स। टुडे इज द लास्ट डे, वी आर टेकिंग ऑल द काउंट्स। तो वॉइस में ऑलमोस्ट 35-40 लोग हो गए हैं प्रोग्राम के लिए, एंड वी आर अरेंजिंग द प्लेस फॉर द प्रोग्राम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोक्षदा एकादशी, प्लीज टेक दिस अपॉर्चुनिटी। ऑल्सो मायापुर कैंप के लिए 35 लोग हो गए हैं। अक्षय विल शो यू द काउंट। So we hope by Krishna's mercy, Lord Chaitanya's mercy, there will be very nice program, and will be association of very senior devotees in Mayapur. So and different festivals. So first program we will attend, that is elephant procession. आपने जो देखा है तो हम लोग उधर जाके अटेंड ज्वाइन करेंगे। एलिफेंट प्रोसेशन राधा माधव का बहुत सुंदर होता है। तो अपने हृदय को बनाइए मायापुर धाम में प्रवेश करने के लिए। आध्यात्मिक जगत है, ट्रेन टिकट से नहीं पहुंच सकते हैं, तो सो प्लीज प्रिपेयर योर हार्ट एंड माइंड। एंड 26th को जो लोग घर से आ रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, तो मोस्टली हाँ, क्योंकि टाइमिंग अर्ली है 8 बजे, और रास्ते में हम लोग नहीं खा सकते। जनरली हम लोग आप लोग को ब्रेकफास्ट देते हैं ट्रेन में, तो कुछ डिवोटी बोल रहे थे कि ट्रेन में नहीं खाना चाहिए, तो इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि ब्रेकफास्ट ईटिंग इन द ट्रेन अवॉइड करेंगे। तो जो लोग वॉइस से आएंगे हम लोग अर्ली कुछ बना देंगे, तो ब्रेकफास्ट ले सकते हैं हल्का कुछ। और जो लोग घर से आएंगे तो थोड़ा हल्का कुछ ब्रेकफास्ट लेके आएंगे तो अच्छा रहेगा। तो दैट विल बी आवर रिक्वेस्ट। मोस्टली देयर विल नो प्रसादम इन ट्रेन बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, and we will follow all the precautions which we are supposed to follow, mask, sanitizer, everything. So request everybody to take it seriously so that we can have very happy and safe yatra in Mayapur. तो ट्रेन का टाइमिंग मोटा मोटी 8 से 9 बजे के आसपास कोई ट्रेन रहेगा। एक ट्रेन है 7:55 में, एक ट्रेन है 9:30 को, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई एक ट्रेन हम लोग पकड़ेंगे, तो वो कंफर्म कर देंगे 25th को। सो इसलिए 25th का आपका अटेंडेंस इधर वो कंफर्म करिएगा, नाइट से कंफर्म करिएगा। 25th आपको डायरेक्ट, अगर घर से आ रहे हैं तो डायरेक्ट आपको सियालदह स्टेशन पहुंचना है। तो वो भी कम्युनिकेशन, ट्रेन का टाइमिंग थोड़ा सा लेट रखा है 8 बजे के आसपास, कि आप आसानी से ट्रेन पकड़ सकते हैं। तो दिस इज द अनाउंसमेंट। और जो लोग नहीं जा रहे हैं उनके लिए संडे एक क्लास रहेगा दोपहर के आसपास, जो हम लोग उधर क्लास अटेंड करेंगे। कोई सीनियर डिवोटी स्पीकर महाराज लोग रहेंगे, तो सेम क्लास हम लोग बाकी लोगों के लिए एक क्लास रहेगा, वो कॉमन ऑनलाइन आप लोग भी अटेंड कर पाएंगे। सो दिस इज द अनाउंसमेंट। सो प्लीज नोट इट इन योर माइंड, एंड इफ एनीबॉडी इज मिसिंग द कैंप, अभी भी अपॉर्चुनिटी है। टुडे इज लास्ट डे फॉर रजिस्ट्रेशन। You can register yourself for Mayapur camp and for Gita Jayanti. Okay, so today we'll be having very special topic, so very interesting topic, that is youth. We are all youth, you are all youth, and we have full of dreams in our mind. So therefore today's topic is youth meant for enjoyment or enlightenment? So very interesting topic. So and we have very special speaker. So our speaker is Akshay Prabhu. Hari Bol. Hari Bol.
Hari Bol. Hari Bol. So Akshay Prabhu is practicing Krishna consciousness last 3-4 years, though he came in Krishna consciousness very early of his childhood through his parents. But for last 4-5 years, he is practicing Krishna consciousness very sincerely. Also, he is using Krishna consciousness actively, taking part in different services, taking lots of responsibilities. Though he have very tight schedule of office, but he sincerely trying to serve Srila Prabhupada mission and the Lotus Feet of Spiritual Master. Currently, he is serving as a overall coordinator of our voice and helping many devotees, inspiring many devotees to take up Krishna consciousness and serving. So, so I request Akshay Prabhu to share his realizations, which you have heard, and offer this important class for benefit of all of you. Thank you. Srila Prabhupada ki. So everybody, please be with us till 8:45, 9 o'clock, 8:30 we'll be having celebration. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna, bro. So I am sharing my screen. आप लोग देखिए, आप देख पा रहे कि नहीं? And then this session will be very very interactive session. ठीक है? So I will ask you all questions, and we will all have different opinions maybe. So we'll come to the conclusion: is youth meant for enlightenment or enjoyment? So आप लोग मेरा screen देख पा रहे, right? Yes, Prabhu. Can see the screen. Okay, so I will just do some short prayers and then we'll start the session. Okay. Om Agnanatimirandasya Gnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Vandeham Shri Guru Shri. Shri Rupam Sagrajatam Sagana Lalita Shri Vishakanitam Shah. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्ताय भूतले श्रीमते स्वामी नित्यनामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. Okay, so there are 5 levels of enjoyment. Okay, 5 level का enjoyment है. तो first is sensual enjoyment, mental enjoyment, intellectual enjoyment, egoistic enjoyment and spiritual enjoyment. ठीक है. तो what is sensual enjoyment? कोई बता पाएंगे? What is the meaning of sensual enjoyment? प्रसन्नजीत प्रभु. हाँ प्रभु. What is sensual enjoyment? प्रभु जी, laughter is the sensual. एक जन मैं. We said the laughter. क्या? Means we call this as a love, but this is not a love. This is laughter. So Okay. this laughter is the sensual enjoyment of the biggest example of sensualism. So Prasanjit Prabhu is saying lust is one of the sensual enjoyment. Anyone else? Supratik Prabhu, you are saying something? Prabhuji, sensual enjoyment means the enjoyment which is given by our senses. Okay. यहाँ से कोई बोल पाएंगे? प्रलय प्रभु, सुभजीत प्रभु, रिकी प्रभु. Sensual enjoyment. Anyone else who wants to answer sensual enjoyment? Sahil Prabhu, yes. Yes, yeah. Sensual enjoyment are like someone wants to consume alcohol, so his senses are kind of like his senses is kind of telling him to do that, like and there are more sense enjoyment like. Okay. So basically sensual enjoyment मतलब क्या है? Eating, sleeping, mating and defending. This is basically sensual enjoyment.
ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, जो जानवर लोग भी करते हैं, है ना? इवन एनिमल्स ऑल्सो डू दिस थिंग. सो अभी मेरे हाथ में ये, दिस इज अ फोन इन माई हैंड. ओके, सो ये फोन, इज इट अ मैटर और इज इट स्पिरिट? फोन इज अ मैटर और स्पिरिट? Matter. Matter. Okay, so phone is a matter. Okay, so now I am controlling this phone with my hands. So मेरे हाथ से मैं इस फोन को कंट्रोल कर रहा हूँ. So my hands are superior to the phone, है ना? And then my hands work according to the direction of my mind. So my mind is superior to my hands and my senses. Yes or no? And above mind is intelligence. Intelligence has power over mind, it can control the mind. And above intelligence, ego is there. Ego is superior to intelligence. Okay, so we will move in this direction. Okay, and overall above is our soul, spirit soul. So the 5 levels of enjoyment: sensual, mental, intellectual, egoistic and spiritual. So in this way we'll move above. Okay, so as you all know, lowest level of enjoyment is sensual enjoyment. So ये तो जानवरों में भी अवेलेबल रहता है, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, जैसे मैं बोला था. सो व्हाट इज अबाउट द सेंसस? सेंसस के ऊपर क्या है? जस्ट नाउ आई सेड. राहुल, कैन यू आंसर? हम लोग इसको बहुत इंटरैक्टिव रखेंगे. ओके, सो इट विल वेरी वेरी इजी. Mind Prabhu. ओके, परफेक्ट साहिल. सो माइंड इज अबाउट द सेंसस. सो ये माइंड जो है ना, माइंड इज लाइक अ टास्क मैनेजर. आप लोगों ने कंप्यूटर किया होगा, राइट? तो कंप्यूटर में एक टास्क मैनेजर रहता है, जिसमें सब अलग अलग टास्क जो रन करते हैं उस सबको मैनेज करता है. वी कैन डिलीट सम टास्क फ्रॉम देयर, वी कैन ऐड सम टास्क ओवर देयर. सो माइंड इज लाइक अ टास्क मैनेजर ऑफ ऑल द सेंसेस. सिमिलरली द एंजॉयमेंट परफॉर्म्ड ऑन दिस मेंटल प्लेटफॉर्म है ना, दिस इज हायर देन द एंजॉयमेंट ऑफ सेंसुअल प्लेटफॉर्म. ठीक है, तो एग्जांपल ऑफ एंजॉयमेंट इन मेंटल प्लेटफॉर्म कोई बता पाएंगे? Example of Dreaming, yes, daydreaming. okay, daydreaming. Okay, anyone from here? Mental enjoyment का कोई example बोल पाएंगे? कौन लोग है या means mental enjoyment का example? Watching movie. Okay, simple अगर ठीक है, वो तो है ही. तो simple watching movies also comes in mental enjoyment. Daydreaming, कृतिका माता जी ने बोला. Yes, अनंत प्रभु आप कुछ बोल रहे हैं? Prabhuji, like somebody is very good in solving maths problems, so he derives enjoyment Okay, no, that is not by mental doing enjoyment. by Okay, solving. no. So Okay, that is generally not. अगर example, if I say basic example, so poets और जो writers है, they are on mental platform. Okay, they do everything in their mind. They think everything in their mind and they enjoy that thing. कविता लिखते हैं all those people. So this is one example of mental enjoyment. हाँ, then above mental enjoyment क्या है? Intellectual enjoyment. आप लोग मेरा Intelligent. स्लाइड्स को पिन कर सकते हैं आपके स्क्रीन पे, सो इट विल बी इजी फॉर यू. सो आई वो मेंटल एंजॉयमेंट, इंटेलेक्चुअल एंजॉयमेंट. तो कोई एग्जांपल देगा? इंटेलेक्चुअल एंजॉयमेंट किस प्रकार के लोग करते हैं? और एनी? तो सुभजीत रो बोल रहे कि बुद्धि को खराब काम में लगाएंगे साइंटिस्ट लोग. ओके, परफेक्ट. साइंटिस्ट लोग इज डूइंग इंटेलेक्चुअल एंजॉयमेंट. बहुत बुद्धिमान रहते हैं और उसी में वो लोग खुश रहते हैं. ये वो रिसर्च करते रहते हैं, उसमें उनको मजा आता है. बिजनेस, ओके, एक प्रकार से है, मतलब जो अपना बुद्धि को यूज करके उसी में लगे रहेंगे, कुछ नया नया रिसर्च करेंगे, पीएचडी करेंगे. कॉकरोच के ऊपर पीएचडी किया, अगला लाइफ में कॉकरोच बन गया. ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं. तो दिस इज इंटेलेक्चुअल एंजॉयमेंट. यस साहिल. Scams, Prabhu, like corporate scams that are done by very intelligent people. Okay, not exactly comes in that. That will come in the next one. So egoistic enjoyment, the next level of enjoyment is egoistic. Anyone can answer? Deep Shikar, Priyanka Mataji. Pride. Egoistic enjoyment का example, किस प्रकार के लोग एंजॉय करते हैं इगोइस्टिक एंजॉयमेंट? वरुण प्रभु, तरुण प्रभु. करने वाले. कौन? Pride. क्राइम क्रिमिनल्स. ओके, क्रिमिनल्स.
इगोइस्टिक है, बट बेस्ट एग्जांपल इज पॉलिटिशियंस. ओके, इगोइस्टिक एग्जांपल का पॉलिटिशियन लोग, वो लोग को ईगो रहता है. एक दे गेट हैप्पीनेस इफ दे गेट सम पोस्ट, सम प्राइड. कुछ लोग उनको कुछ बोलेंगे तो उनको ईगो रहता है उस चीज का. सो दे आर मीन्स इन दिस लेवल. और जो साहिल प्रभु बोले थे कुछ स्कैम कर रहे थे, so they also come in that level only, criminal people and all those people. ठीक है. सो अभी ये जो एंजॉयमेंट है, जो 5 प्रकार के एंजॉयमेंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सेंसुअल, मेंटल, ये 4 प्रकार के, सेंसुअल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, इगोइस्टिक, जो अभी हमने डिस्कस किया. तो क्या ये सब परमानेंट है? क्या ये सब आपको परमानेंट हैप्पीनेस देगा कि ये टेम्पररी है? Temporary, Prabhu. Temporary. Correct. Perfect. So one who is attached to the mental happiness है ना, he will be carried away by his mind. Mind उसको पूरा काबू कर लेता है. Okay, that is called as Maya. He comes in Maya with his mind. Okay, so मन जो ही बोलेगा वही करेगा, वही वो करेगा. ऐसे बहुत लोग बोलते हैं ना, प्रभु मेरा मन ही नहीं कर रहा है. हम सब लोग को जाते हैं, फोन करते हैं कि प्रभु आइए, क्लास में आइए. वो क्या करे प्रभु, मन नहीं कर रहा है. जो मैं तो मन मौजी हूँ, जो मन बोलूंगा मैं वही करूंगा. अरे बेवकूफ, तुम मन मौजी नहीं हो, तुम मन के गुलाम हो. मन जो बोल रहा है वही मतलब मन के गुलाम हो, है ना. सो दिस इज हाउ माइंड विल चीट अस. ओके, सो माइंड इज अ रास्कल एक्चुअली. प्रभुपाद बोलते हैं माइंड इज रास्कल. सो बहुत बहुत जन्मों से हम ये चीटिंग ही करते आ रहा है. सो जैसे हमारा फिजिकल जो बॉडी है ना, व्हेन इट विल गेट डिस्ट्रॉयड, we'll get a new body. And new body कैसे मिलेगा? Because of our mind, because of the impressions of our mind, we'll get the new body. So कितना कितना 84 लाख स्पीशीज में हम लोग घूम के, सब बन के, ये वो कॉकरोच, कुत्ता, बिल्ली, ये सब चीज, पेड़ पौधा, पंछी, सब बन के अब एक ह्यूमन फॉर्म मिला है हम लोग को. तो ये सब माइंड ही करवा रहे हैं हम लोगों से. ओके, सो अभी जितना भी हम लोग बर्थ डेथ लिया है ना, जितना भी लाइफ हम लोगों ने जिया है, तो वो सब का हमारे माइंड में इंप्रेशंस पड़ा है. हालांकि हम इंसान का शरीर में है, पर हम लोग पहले जन्म में जो भी हो सकते हैं, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गधा, जो भी है, तो वो सब का इंप्रेशन हमारे दिमाग में अभी भी है. ओके, इट इज ऑल इंप्रेशंस आर स्टिल देयर इन आवर माइंड, एंड दिस इंप्रेशंस विल अगेन मीन्स लेट अस ट्रांसमाइग्रेट टू अ न्यू बॉडी. इन्हीं के वजह से हमें एक और नया शरीर मिलेगा. ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो बहुत लोग जो देशभक्त करके बोलते हैं, इंडिया के जो देशभक्त है, वो लोग को बहुत ईर्ष्या होता है, जलन होता है पाकिस्तानी लोगों से. वेरी वेरी जेलस ऑफ पाकिस्तानी. बहुत उनके बारे में सोचते रहते हैं, पाकिस्तानी लोग ये किया वो किया, व्हाट्सएप फेसबुक में वही पोस्ट डालते रहते हैं. तो मरने के बाद अगला जन्म पाकिस्तान में जन्म होगा तेरा. ये पूरा पूरा लाइफ तो पाकिस्तान लोग के बारे में सोचा है ना. सो माइंड में वो इंप्रेशन बैठ गया है. ओके, सो इन दैट वे he will mind will cheat him. So what is the definition of mind? Who can say? Anyone can say? Varun Prabhu, what is the definition of mind? Storehouse of thoughts and desires, unfulfilled desires. Okay, very nice. So Varun Prabhu had the experience. One time I was asking me in temple कि ऐसा ऐसा मेरे को dreams आ रहा है, all these things are happening. These all are because of the impression of past life. So definition of mind is that it is a storehouse of our unfulfilled desires, our past experiences, जो हम लोग ने किया है, हाँ, उसका पूरा स्टोर हाउस है. एंड our future planning. तो past experience, हमारा अनफुलफिल्ड डिजायर और हमारा फ्यूचर प्लानिंग, ये 3 चीजों का स्टोर हाउस इज आवर माइंड. ओके, दैट्स व्हाई वी आर मोस्ट ऑफ द टाइम ड्रिवन बाय आवर माइंड. जो माइंड बोलता है हम लोग वही करते हैं. ओके, सो समटाइम्स हमारे माइंड में हम लोग पिछले जन्म में जो बने थे, जीव जंतु जानवर, उनका इंप्रेशन हमारे माइंड में रहता है. कैट्स, डॉग्स, कैमल्स, ऊंट, फिर उसके बाद सुअर. ये तो ये 4 जानवरों का ना एग्जाम्पल, मतलब एक एनालॉजी दिया है प्रभुपाद ने भागवत गीता और भागवतम में भी. सो कैमल्स के बारे में बोलते हैं, ठीक है प्रभुपाद. तो कैमल्स जो है आप लोग पहले भी सुने होंगे मोस्टली. तो कैमल लोग कैक्टस खाते हैं. कैक्टस मतलब रेगिस्तान में जो पौधे रहते हैं ना, जिसमें थॉर्न्स रहता है, तो कैमल लोग वो खाते हैं कैक्टस, उसपे बहुत सारा थॉर्न्स रहता है. तो जब वो कैक्टस खाता है तो सब उसके मुंह में सब चुभ जाता है, उसका थॉर्न्स
छोटा छोटा टॉन्स सूख जाता है और उससे पूरा खून निकलता है मुंह में, और वो खून उसके कैक्टस के जूस के साथ मिक्स हो जाता है, और उसको लगता है कैक्टस का जूस कितना स्वीट है, कितना अमृत जैसे लग रहा है मुझे, तो उसी में वो खुश है कैक्टस का जूस खा के। तो माइंड से चीट करे, देखिए इसको, ही इज सफरिंग बट माइंड इज टेलिंग हिम यू आर एंजॉयिंग। ओके, सो इन दिस वे ये चीट करता है। तो ये कैक्टस का, ये जो कैमल का एनालॉजी क्यों दिया गया है यहाँ पर, बिकॉज मैक्सिमम टाइम नो इन दिस, इवन आफ्टर गेटिंग द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, ये जो इम्प्रेशंस हमारे लाइफ में पिछला जन्मों के हैं ना, दे आर स्टिल एनफोर्सिंग अस टू डू रॉन्ग एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, बिगेस्ट थिंग मीन्स क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पीपल, maximum these youth boys and all those things, they discharge their semen. Okay, so they don't know how important your semen is. It is just like drinking your own blood, or sorry, wasting your own blood, semen. So one drop of semen is equal to 80 drop of blood. 80 ड्रॉप खून का पूरा करके एक ड्रॉप सीमन बनता है, and they are just discharging and wasting their semen. And semen is so valuable, means one of the element of our body, this semen, that it can create a new body, it can reproduce. So it has this potential, it has the gist of the energy of all our body, this semen. But even after this thing, just like हमारा कैमल का इंप्रेशन हमारे मन में है, खुद का खून कोई कैमल चबा के एंजॉय कर रहा है, just like that maximum of this youth age they do this thing. So this impression are stored in our mind, and ये हम लोग को ले जाता है sensual enjoyment की तरफ, ठीक है। So first it will come in our mind, mental level में आता है, and when you enjoy in your mental level, then it will take you to your sensual level, okay, to more lower degrading levels. So this is how we slowly come down, and then this all the platform जो मैं discuss किया था, sensual, mental, intellectual, all these are what you say, temporary things. So मैं आपको एक example बोलता हूँ, I'll just share my screen. ये स्टोरी आज सुबह महादाम प्रभु बोले थे क्लास में। हाँ, देखिए आप मेरे स्क्रीन पे एक फोटो देख पा रहे एवरीवन, राइट, ऑन माय स्क्रीन, इज इट विजिबल? यस, नो? Yes, Prabhuji. Okay. Yes, Prabhu. So Yes, what Prabhu. happened is that ये आदमी जो है ना, ये जंगल में कुछ कर रहा था, I don't know what he was doing in jungle, and then वहां पर देखा उसको कुछ घास फूस में कुछ आवाज आया, तो देखा क्या आवाज आ रहा है, और देखा तो क्या यहाँ पर शेर है, एकदम चुपके से आ रहा है शेर उसके तरफ, वो देखे वहां से डर के भाग गया, वो भाग रहा है जंगल में, वहां पर पूरा घास भी सब कुछ है, और वो उसके बीच में ना एक सूखा हुआ कुआं था, एक सूखा हुआ कुआं था, बहुत पुराना कुआं, पानी नहीं कुछ, सूखा हुआ कुआं, वो भाग भाग के देखा नहीं, और वो घास पूरा कवर कर लिया कुएं को, तो उसके अंदर आके मतलब जस्ट पैर फिसल के उसमें गिर गया, और कुएं के अंदर से ना आप देख रहे फोटो में एक झाड़ आ रहा है, देखिए वहां से, तो एक झाड़ कुएं से आ रहा, तो झाड़ को पकड़ लिया खुद को बचाने के लिए, और देखा तो क्या, कुएं के नीचे एक बहुत ही भयानक पाइथन सांप मीन्स बैठा हुआ है, और शेर आ गया अभी ऊपर से शेर है, नीचे से वो पाइथन है, और वो झाड़ के टाली को पकड़ के ये किया, जैसे झाड़ टाली को पकड़ लिया ना, उसके ऊपर एक मधुमक्खी का गुच्छा था, वो हनीकॉम्ब, तो सब मधुमक्खियां वहां से डिस्टर्ब होकर निकल गई, और वो आके उसको काटने लगी, एंड वहां पर कुछ रैट्स दिख रहे थे फोटो में, एक दो रैट्स है, एक काला और एक गोरा, वो दोनों उस झाड़ को वहां पर है। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस थिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सिनेरियो, क्या आपको समझ में आ रहा है ये देख के? Prabhu, he is in trouble from all corners. ओके, सिद्धार्थ प्रभु बोले ट्रबल फ्रॉम ऑल और कॉर्नर्स, फिर भी उसको ऊपर से जो शहद टपक रहा है उसको एंजॉय कर रहा है। ओके, और कोई? एनीवन एल्स? व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ सिनेरियो? ये हमारा प्रभु, हम सिचुएशन लोग भी है, ऐसे ही माया में फंसे हुए हैं और हम लोग भी छोटा छोटा चीज ऐसे ही एंजॉय कर रहे हैं, ऑल सेंस ग्रेटिफिकेशन, दो डेथ इज कमिंग क्लोजर टू अस एवरी डे। ओके, एनीवन एल्स कैन आंसर?
What do you understand from this photo? हम लोग सारा डेंजर्स को भूल के छोटा सा मतलब इसमें मतलब ग्रेटिफिकेशन में मतलब भूल जाते अपने सिचुएशन. Correct. So you both gave the correct answer. So ये जो आदमी है ना, ये आदमी जो यहाँ पर लटका हुआ है, ये आदमी ना हम सब लोग के जैसे ही है. ठीक है, हम लोग भी लटके हुए इसी तरह से. तो ये जो झाड़ का जो डाली दिख रहा है आपको फोटो में, वो हमारा मेटीरियल बॉडी है. ठीक है, ये मेटीरियल बॉडी ना वो दिन रात मतलब मौत की तरफ बढ़ते जा रहा है. जो काला और गोरा चूहा दिख रहा है ना, वो उसको काट रहे हैं उस डाली को, और वो कहीं भी टूट के गिर सकता है. डे एंड नाइट इट विल वो डे एंड नाइट के उसको रिप्रेजेंट करते हैं. काला गोरा चूहा इज लाइक डे एंड नाइट, एंड दिस दे आर कटिंग अवर मेटीरियल बॉडी एवरी डे. वी जस्ट लाइक मूविंग टुवर्ड्स डेथ. और हम लोग बाहर निकल भी नहीं सकते. मरना तो है ही. मेटीरियल, ये जो कुआ है मेटीरियल वर्ल्ड के जैसे है. नीचे सांप है, मौत हमारा इंतजार कर रहा है हर तरीके से, और ऊपर एक शेर है. तो नीचे गिर गए मेटीरियल वर्ल्ड में मर जाएंगे, और ऊपर अगर निकल भी गए, उसका मीनिंग है if हम लोग बहुत सारा पुण्य कमा के विल गो टू सम हायर प्लैनेटरी सिस्टम, स्वर्ग लोक में गए, ब्रह्म लोक में गए, तो वहां पर ही मौत ही है ना. एवरीबडी विल डाई, दैट वाज द मेटीरियल वर्ल्ड ओनली. तो शेर भी खड़ा है ऊपर से, और ये सब के बीच में यहाँ पर जो हनी बीज है, ये आपको आके चुम्मा दे रही है. तो हनी बी का, किसी ने हनी बी का चुम्मा कभी खाया है क्या? किसी ने खाया हनी बी का चुम्मा अभी तक? तो क्या एक्सपीरियंस है आपका हनी बी का चुम्मा खाने? मैं दौड़ कर भाग गया था प्रभु. Okay, so these honey bees, they are coming and then biting that man. उसको काट रही है पूरा, और काट के पूरा उसका सूज रहा है, मुंह पूरा सूज गया है, हाथ भी सब सूज गया, परेशान हो गया है. और ये सब परेशानी के बीच में ऊपर से एक ड्रॉप मधु, एक शहद गिरता है, और गिरते उसको लप लबा के करके पूरा चाट के वो ले लेता है, और फिर भूल जाता है सब. जैसे वो एक मधु गिर गया, ये सब भूल गया मेरे क्या क्या परेशानी है. समझ रहे? दैट इज आवर सिचुएशन. दिन रात हम लोग गधे के जैसे घिस घिस के काम करेंगे, ये सब करेंगे, इतना सफरिंग है बस एक चीज के लिए जो टेम्पररी है. एक ड्रॉप मिला टेम्पररी, थोड़ा टेस्ट मिला, चला गया, उसके लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं. ओके, सो thus if we get attached to this temporary flickering happiness of this material world, then we'll all suffer like this person only. हमारा सफरिंग करना निश्चित ही है. एंड only an intellectual person can come out of the situation. अगर आप बहुत ही बुद्धिमान हैं, तभी आप इस सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे, और वो तब हो पाएगा when you read the scriptures. भागवत गीता पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम सुनेंगे, जब शास्त्रों का ज्ञान आएगा, if you follow the instructions of your spiritual master, by that your intelligence will get nourished. आपका बुद्धि नरिश होगा, और उसके द्वारा ही आप इस सब सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे. तो एक और एग्जांपल, ये जो मेटीरियल हैप्पीनेस, जो फ्लिकरिंग हैप्पीनेस है ना, इट इज एक्चुअली नॉट हैप्पीनेस, वो एक सफरिंग है, हैप्पीनेस नहीं है. जैसे जब कोल्ड वॉर था ना, कोल्ड वॉर 1970s में भी, उसमें कोल्ड वॉर हो रहा था रशिया और अमेरिका के बीच में. तो ये दोनों सुपर पावर्स है, दोनों में कोल्ड वॉर हो रहा था. तो ये दोनों ने क्या किया, अपना बहुत सारे जासूस एक दूसरे कंट्री में डाल दिया. अमेरिका का जासूस रशिया में गया, रशिया के बहुत सारे स्पाइस अमेरिका में चले गए, एंड उसका सब सीक्रेट्स वहां से निकाल रहे ढूंढ ढूंढ के. तो किसी को जासूस को अगर रशिया में पकड़ लिया, अमेरिकन जासूस को, ठीक है, तो क्या किया, उसको ठंडे पानी में, नदी बह रहा है, रशिया में बहुत ठंडी है, हाँ, बर्फ गिरती है वहां पर, ठंडे पानी में ले गए, उसको नदी में डुबा दिया, पूरा डुबा दिया. वो पूरा तड़प रहा है बेचारा, सांस ले नहीं पा रहा है, पूरा तड़प रहा है, और उसको बाहर निकाला. बाहर लेते ही थोड़ा सांस लिया, फिर उसको अंदर डुबा दिया, फिर वो तड़प रहा है, फिर बाहर निकाला, फिर वो सांस लिया. तो क्या ये सफरिंग है कि हैप्पीनेस है? हाँ, सफरिंग है ना. तो मेंटल वर्ल्ड इज जस्ट लाइक दैट, इट इज फुल्ली सफरिंग ओनली. उसके बीच में हम लोग को बाहर निकाला, मतलब को थोड़ा रिलीफ मिला, उसको वो थोड़ा एक सांस ले पाया, एक रिलीफ मिला. तो रिलीफ है, वो हैप्पीनेस नहीं है. दैट इज रिलीफ फ्रॉम आवर सफरिंग. ओके, इन दिस वे वी आर बीइंग चीटेड बाय आवर माइंड. हैप्पीनेस इज फ्लिकरिंग दिस मटेरियल वर्ल्ड. तो ये देखिए, ये अगला फोटो देखिए, इस गधे को देखिए सामने. ये गधा और कोई नहीं, हम सब लोग गधा है, ये सब गधा हम लोग के जैसे ही है.
और ये उसको आदमी बैठा है ना, वो और कोई माया है वो, ठीक है। तो एक गधे को महाराम प्रभु ने पहले भी आपको समझाया था, राइट। ये गधे को कहाँ पर भी खाना मिल सकता है, घास बीज जो भी है, पर उसको वो नहीं चाहिए। वो तो उसका जो मालिक है, वो एक लकड़ी से सामने एक क्या बोलते हैं, गाजर या कुछ घास ला के रखता है। तो गधे को लगता है बस एक स्टेप और, एक कदम और लूंगा मैं घास खा लूंगा, एक कदम और लूंगा मैं घास खा लूंगा, और वो चक्कर में बहुत सारा बोझा डाल के उसके ऊपर उसको काम कराता है। सो इन दिस वे माया इज चीटिंग अस। एक कदम और ले लो आगे, बस 10th का एग्जाम पास कर लो बेटा, लाइफ बन जाएगी। 12th पास कर लो, अच्छा इंजीनियरिंग मिल जाएगा, ऐश करोगे। पढ़ाई कर लो बस इंजीनियरिंग कॉलेज में, गूगल फेसबुक अमेजोन में जॉब निकाल लो, फिर तो मौजा ही मौजा, कोई बात नहीं। फिर जब काम करोगे बस शादी कर लो बेटा, लाइफ विल बी वेरी वेरी सेटल्ड एंड नाइस। इन दिस वे कंटिन्यूअसली एक कदम और, एक कदम और हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं। पर कहाँ मिल रही है खुशी हम लोग को? मिल रही है क्या? हाँ, तो ये हम लोग अभी No, से नहीं कर Prabhuji. रहे हैं। वी आर डूइंग दिस थिंग फ्रॉम करोड़ों करोड़ों जन्मों से, हम लोग यही चीज कर रहे हैं, यही चीज करते आ रहे हैं। एंड बिकॉज एवरीथिंग इज टेम्पोररी इन द मटेरियल वर्ल्ड, सो हैप्पीनेस इज ऑल्सो नॉट टेम्पोररी। आज सुबह महादाम प्रभु सेशन में बोल रहे थे कि वी आर सर्चिंग हैप्पीनेस इन द मैटर। तो जब प्रभुपाद जब फर्स्ट टाइम अमेरिका में लैंड हुए थे ना, तो वो सबसे पहले गए थे बॉस्टन में। जब लैंड हुए थे तो वहां पर जाके वो देखे, तो फर्स्ट रियलाइजेशन क्या था, अमेरिका इतना फास्ट देश है, सब लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर गाड़ी सब कुछ चल रहा है, बार्स है, पब्स है, सब नशा कर रहे, वेरी वेरी फास्ट, लोग मेहनत कर रहे हैं। प्रभुपाद फेल्ट वेरी वेरी कंपैशनेट कि खुशी पाने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, आनंद पाने के लिए सब जगह पे ढूंढ रहे हैं आनंद, इतना फास्ट लाइफ में, पर खुश भी नहीं है लोग। दिस वाज रिलेशन प्रभुपाद। व्हाई? बिकॉज वो लोग कृष्णा से बहुत दूर है। द सोल हैज फॉरगॉटन कृष्णा, कृष्णा को भूल गया है। कृष्णा ही हैप्पीनेस का स्रोत है। कृष्णा को भूल के बाकी सब जगह पे वो खुशी को ढूंढ रहा है। ओके, एंड ही सफरिंग। दिस इज हाउ क्या बोलते हैं, पीपल आर सफरिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। So this is the enjoyment without enlightenment. Without enlightenment, this is the enjoyment. So I'll take it to the next slide. Okay. तो enjoyment without enlightenment lead to destruction. अगर आप कहीं हावड़ा स्टेशन पे जाओगे कहीं पर, अगर कोई यंग भिखारी, एक यंग बेगर आपके पास आएगा आपके बाजू में, तो उससे आपको डेंड्राइट का स्मेल आएगा। डेंड्राइट, डेंड्राइट समझते हैं ना? हाँ, जो प्लास्टिक को चिपकाने के लिए उसके अंदर डेंड्राइट, डेंड्राइट का पूरा बास मारेगा उसके अंदर से। तो ये डेंड्राइट क्या है? दिस ये नशा करता है। डेंड्राइट को खाएगा तो आपको पूरा नशा करेगा। तो वो, हाँ मतलब वही, मतलब उसका जो फूकता है उसको करके क्या करते हैं ना, हाँ वो करने से पूरा नशा आ जाता है उसको, डेंड्राइट खाने का। तो देखिए आप प्रभु जी, लोग मेरा एक फ्रेंड है ऐसे। क्या बापी प्रभु? मेरा एक फ्रेंड प्रभु मतलब डेंड्राइट नशा करते थे, वो हम देखे थे। करेक्ट। सो क्या है ये नशा का? वो है यंग भिखारी, उसके बॉडी से पूरा डेंड्राइट का स्मेल आ रहा है, नशे में पूरा दिन पड़ा हुआ है। जस्ट एक ड्रॉप हैप्पीनेस का जो टेम्पोररी है, फिर निकल जाएगा, फ्लिकरिंग हैप्पीनेस। दिस इज व्हाट इज एंजॉयमेंट विदाउट एनलाइटनमेंट। ओके, फिर ये देखिए यहाँ पर एक और एग्जांपल आपको मैं दिखाऊंगा। बिल क्लिंटन को लस्ट ने डिस्ट्रॉय किया, लस्ट। बिल क्लिंटन कौन थे? प्रेसिडेंट। प्रलय प्रभु बोल रहे बिल क्लिंटन वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, यूएसए। यस, ही वाज इन अमेरिका। तो बिल क्लिंटन ने क्या किया? दिस बिल क्लिंटन ना, उसने अपने पीए का रेप कर दिया, पर्सनल असिस्टेंट का रेप कर, देखिए रेप कर दिया। लोगों ने उसको जूते मार के उसको वहां से निकाला पार्लियामेंट से। तो देखिए, दुनिया का सबसे पावरफुल देश, सुपर पावर, वो सबसे पावरफुल देश का सबसे पावरफुल इंसान बिल क्लिंटन, वो भी लस्ट से बच नहीं पाया।
उसको भी लस्ट ने डिस्ट्रॉय कर दिया. दिस इज हाउ एंजॉयमेंट विदाउट एनलाइटनमेंट, दिस इज हाउ इट विल चीट यू. तो आप उससे बच नहीं पाएंगे, लस्ट से. वेरी वेरी डेंजरस. देन एक और यहाँ पर देखिए, ये ग्रीड डिस्ट्रॉयड हैंसी क्रॉन्जे. किसी को पता है कौन है ये हैंसी क्रॉन्जे? एनीवन? No, Prabhu. So Hansi Cronje, he was South African cricket team captain. तो लास्ट वर्ल्ड कप वो प्ले किया था 1999 में. ओके, एंड देन ही गॉट इन्वॉल्व इन मैच फिक्सिंग. ग्रीड, पैसे का ग्रीड, मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व हो गया, एंड देन दैट्स ऑल, करियर गॉन. और हम लोग जितना आईपीएल करते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग, ये कुछ नहीं है, ये गैम्बलिंग है. इट इज फुल गैम्बलिंग. हमारे इमोशन के साथ, जज्बा के साथ खेला जा रहा है. दे आर प्लेइंग विथ अवर इमोशंस. हमें बेवकूफ बना के हमारे इमोशन के साथ खेल के पैसा कमा रहे हैं वो लोग, जुआ खेल के. एंड वी ऑल आर जस्ट लाइक मैड पीपल एंगेज्ड इन दैट. मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मनी दे आर कमा रहे हैं, और हम लोग को बेवकूफ बना रहे हैं. आईपीएल ओपनली जुआ खेल रहे, गैम्बलिंग. सो दिस इज हाउ ग्रीड इज डिस्ट्रॉइंग. मोहम्मद अजीरुद्दीन 1996 का जो मैच हुआ था, इंडिया और श्रीलंका का जो वर्ल्ड कप मैच था, जिसमें इंडिया हार गया था. बहुत लोगों ने हमें टीवी फोड़ दिया उस दिन, इंडिया हार गया. ये मैच फिक्सिंग किया था मोहम्मद अजीरुद्दीन ने, ग्रीड के लिए. तो कितना लोग देखिए ये गलत काम कर रहे हैं. देन एंगर डिस्ट्रॉयड माइक टाइसन. माइक टाइसन को तो आप जानते होंगे, वेरी वेरी पॉपुलर इमेज. हाँ, Yes, Prabhu. तो इतना गुस्सा माइक टाइसन के अंदर, गुस्से से क्या किया उसने, अपने ओपोनेंट का कान को जोर से चबा के पूरा कान काट दिया उसका. इतना गुस्सा उसके अंदर, बॉक्सिंग का रूल्स फॉलो नहीं करके उसने वैसे कर दिया. एंगर, इतना गुस्सा, एंगर डिस्ट्रॉयड माइक टाइसन. सो इन दिस वे all this thing will happen when you enjoy without enlightenment. Okay, so what is wrong with this mentality of enjoyment? क्या गलत है without enlightenment अगर हम enjoy करेंगे तो? हाँ, सब कुछ गलत है प्रभु जी, कुछ सही नहीं है, सब गलत है. okay, so this enjoyment without enlightenment is temporary, it is miserable, and it is illusionary. Material enjoyment is just temporary, miserable, and illusionary. This is wrong with this enjoying mentality in this world. तो just for example, अगर मैं आपको illusion का example दूंगा, तो अगर कोई आदमी को कार खरीदना है, तो कार खरीदने के लिए बहुत मेहनत करेगा, बहुत ब्रांड देखेगा, और बहुत उसके, वो अपने ड्रीम के दुनिया में स्विमिंग कर रहा है. कार खरीदूंगा, मैं कार खरीदूंगा, पैसा आ गया है, 7 लाख रुपए 8 लाख रुपए है, कार खरीदूंगा, सब रिसर्च कर रहा है, कार कंपनी को फोन किया, जस्ट ड्रीम किया. तो कितना खुश था वो, मेंटल हैप्पीनेस, कार खरीदने के पहले. अभी कार खरीद लिया, सब खुशी गया पानी में. कार खरीद लिया, पैसा चला गया, अब कार का मेंटेनेंस करो. वो अच्छे से रास्ते पे कार चला रहा है, बाजू वाला बाइक वाला आके मार के चला गया, उसका पेंट निकल गया, अब उसको मेंटेनेंस करो. उसके जिंदगी में ही वो जो कमा रहा है वो कार के मेंटेनेंस में सब खर्च कर दे रहा है. दिस इज हाउ इल्यूजन, माया कैसे आपको चीट करा है. देखिए, आफ्टर बाइंग द कार, वो कार उसके लिए एक बोझा बन गया है. समझ रहे? ओके, देन वन मोर थिंग, द मेटेरियलिस्टिक पीपल, मेटेरियलिस्टिक मैरिज, शादी जो ये मेटेरियलिस्टिक लोग करते हैं, पहले तो बहुत ही अच्छा है, अरे वाह चंद्रमुखी है, कितना मजा आ रहा है, चुप चुप के मिलेंगे हम लोग, बहुत सारी फिल्में भी निकली इसके ऊपर. और शादी होने के बाद सूर्यमुखी जानते हैं ना आप, क्या है सूर्यमुखी? हाँ प्रभु. सूर्यमुखी, सनफ्लावर, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, सूर्यमुखी. एंड देन कुछ टाइम के बाद, 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए मैक्सिमम, उसके बाद वो हो जाएगा ज्वालामुखी. बस देखिए, in this way this illusion will cheat us. So
next slide. Okay, so how is this material pleasure temporary? This body is temporary, youth age is temporary. This body temporary का मतलब JFK, John F. Kennedy, the president of United States, गोली से मार दिया उसको, मोस्ट पावरफुल आदमी चला गया. मोहम्मद अली, उसका अभी हाथ में अल्जाइमर, क्या बोलते उस बीमारी को, पूरा शेक होते रहता है हाथ, उठा नहीं पा रहा है. Parkinson's disease. Parkinson's disease, yeah. So that is temporary. The charm of the sense object is temporary. बहुत अच्छा लगेगा पहले, पर इसका एग्जाम्पल क्या है, मैरिज लुक्स वेरी वेरी नाइस इन द बिगिनिंग. मेटेरियलिस्टिक लोग यही तो करते हैं दुनिया में, इतनी सारी फिल्में इसके ऊपर ही बनी है, इसी चीज के ऊपर, सेंस एंजॉयमेंट के लिए. एंड एबिलिटी टू एंजॉय, हमारे सेंसेस का एबिलिटी है, दैट इज ऑल्सो completely temporary. We cannot enjoy after some certain time, है ना. So अगर आप कोई आदमी है, बहुत मेहनत करता है, किसी को नया नया जॉब मिल गया, 25 साल का हो गया, अच्छा जॉब मिल गया, तो बहुत मेहनत करेगा, सपना है कि मैं घर खरीदूंगा, बहुत अच्छा घर बनाऊंगा, सब करूंगा, बहुत प्लॉट देख लिया, ब्रोकर लोगों से बात कर लिया, यहाँ पर अच्छा घर, कोई फ्लैट खरीद लिया अच्छे एरिया में ब्रोकर से करके. अभी वो फ्लैट तो खरीद लिया, इतना पैसा तो गया, उसका लोन चुका हुआ, अभी वो फ्लैट का लोन चुकाने के लिए, अभी फ्लैट का रेट चल रहा है 75 लाख के आसपास, उसका लोन चुकाने के लिए और 20 साल मेहनत करो, गधे के जैसे मेहनत करो, और फिर फ्लैट में तो प्रॉब्लम आएगा, ये मेंटेनेंस खराब हो गया, प्लम्बिंग खराब हो गया, दरवाजे फूल गए, ये हो गए, वो हो गए, मेंटेनेंस करते रहो, और इतना मेंटेनेंस करेगा फ्लैट का, उसका इतना मेहनत करके करके लास्ट में वो आदमी मर जाएगा. क्या हुआ फ्लैट का? टेम्पोररी. फ्लैट को लेके तो गया नहीं अपने साथ, पूरा जिंदगी फ्लैट को मेंटेन करने में, चिंता में अपने घर के पीछे लगा हुआ है. सो इन दिस वे ऑल दिस थिंग्स आर कंप्लीट टेम्पोररी, इल्यूजरी एंड फुल ऑफ मिजरी. याद रखिए, टेम्पोररी, इल्यूजरी मतलब मायावी, एंड फुल ऑफ मिजरी. और दिस जो सब लोग को, जो बहुत ही मेटेरियल लोग को, जो आउटसाइड पीपल जो भी चीज कर रहे हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स विच दे फील वेरी वेरी प्लेजरेबल, चरम सुख मिलता है हम लोग को करके जो लोग बोल रहे हैं, व्हाट इज दैट? जस्ट फॉर इवन फॉर 5 minutes ऑल्सो यू कैन नॉट एंजॉय दैट हैप्पीनेस. और उसके लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं, खून खराबा बाहर, कितना गंदा गंदा चीजें कर रहे हैं. तो बिफोर मैरिज very very happy on mental platform, and after marriage just everything happiness gone. This is how the material happiness, material pleasure is temporary, illusory and full of miseries. एक सीनियर डिवोटी थे, तो उनके एक स्टूडेंट थे, तो वो उनका शादी हो गया था, तो वो आके बोल रहे हैं कि प्रभु क्या करे, प्रभु परेशान हो गए हैं, शादी करके तो अभी तो हम फंस गए हैं. तो ड्यूटी ने पूछा क्या हुआ, क्या ऐसे क्या बात कर रहे हैं आप? तो बोले कि शादी के पहले तो मुझे कुछ बोला नहीं था, उनको गायनेकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम हो गया था, उनके ओवरी में सिस्ट है. सिस्ट समझते हैं ना? ओके, स्मॉल ट्यूमर. करेक्ट. तो ओवरी में सिस्ट है, अब बच्चा होगा कि नहीं होगा पता नहीं, क्या करेंगे, परेशान हो गए. तो शादी के पहले कितना इल्यूजन था, इतना धूम धड़ाका. प्रभुपाद बोलते हैं कि डोल बजा के बेवकूफ बनाया. प्रभुपाद बोलते हैं, क्लास में मैं सुना था. तो कितना इल्यूजन, कितना फैमिलीज आएगा एक साथ, ये एंजॉय करेगा, ये पार्टी रिसेप्शन हो गया, एंगेजमेंट हो गया, 3 और पार्टी कर देंगे, ढोल बजा के बेवकूफ बना दिया. इन दिस वे दिस मेटेरियल हैप्पीनेस, दिस प्लेजर इज जस्ट इल्यूजरी, इट इज नॉट हैप्पीनेस. ओके, इट इज एंजॉयमेंट विदाउट एनलाइटनमेंट. ये बात याद रखिए. ओके, कभी आप हम लोग ये जो लोकल ट्रेन में जाते हैं ना, कृष्णनगर लोकल, बलगा लोकल, कितना भीड़ होता है लोकल ट्रेन के अंदर. क्या आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, राइट? मिथुन, साहिल प्रभु, Yes, जिया प्रभु. प्रभु, बनगा लोकल, आदित्य प्रभु, कृष्णनगर लोकल, कितना भीड़ होता है. तो वो भीड़ के बीच में उसका बड़ा बोझा बैग वो लेके घुस गया, भीड़ के बीच में घुस के उसका सिर पे रख के ऐसा 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 करके देखा सीट कहाँ पर है, कहाँ पर है, अभी देख रहा है, बीच में घुस गया, चारों जगह पे देख रहा है सीट कहाँ है, कहाँ है. देखा वहां पर ना लोकल ट्रेन में क्या होता है, एक लंबा सीट होता है लास्ट में, और 3-3 का सीट होता है, 3-3 लोग बैठते हैं. तो एक सीट में 3 लोग बैठे थे. आप समझ रहे हैं,
एक सीट में 3 लोग बैठते हैं और एक लंबा लंबा सीट होता है लोकल ट्रेन में, देखा होगा आपने, राइट? यस प्रभु। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो बोलिए मुझे, हाँ, चुपचाप मत रहिए, ठीक है? तो एक सीट पे 3 लोग बैठते हैं, तो हर सीट पे 4 लोग बैठे हैं, वहां पर उन्हें 3 लोग बैठे हैं, तो इमीडिएटली गया, लोग को ऐसा धक्का बिक्का मार के गया, वहां पर जाके बैठ गया। अब बैठ गया तो पूरा तो बैठने को मिलेगा नहीं, जगह है 3 लोग का, 4 लोग बैठेंगे, चौथे आदमी को तो पूरा बैठने को मिलता नहीं है। तो हमारे बैक साइड को क्या बोलते हैं, हमारे जो क्या बोलते हैं, बैक साइड को क्या बोलते हैं, हिप, क्या बोलते हैं उसको? बम बम। हाँ, बम। तो अभी एक बम ना सीट के ऊपर है और एक बम सीट के नीचे है, और सीट के ऊपर उसका बड़ा बोझा है, बैग। अभी वो चढ़ गया सियालदा से, उसको बीच में कहीं पे उतरना है, कल्याणी या कहीं स्टेशन आता है ना बीच में, वहां पे उतरना है, और वो सोच रहा है कि अभी कुछ खा लेगा, अभी खा लेगा। तो पूरा जर्नी ये ऐसा धक्का मार मार के वो दूसरे बम को अंदर लेने का प्रयास कर रहा है, और एक स्टेशन आ गया, उसमें और पूरा भीड़ घुस गया ट्रेन के अंदर, और परेशानी उसको, और प्रयास कर रहा है, वो प्रयास करने में उसका स्टेशन आ गया, कल्याणी स्टेशन आ गया। अभी अगला स्टेशन कल्याणी है, अभी देख रहा है, बाप रे बाप, इतना भीड़ हो गया, अब मैं निकलूंगा कैसे बाहर? तो अभी बोझा उठाया, अब ये धक्का मुक्का मार के निकल रहा है बाहर, किसी के पैर पे पैर डाल रहा है, किसी को कोनी से मार रहा है, ये वो करके लोग उसको गाली दे रहे हैं, इतना कष्ट करके लास्ट में बाहर निकला, थोड़ा गर्दन बाहर निकाला, थोड़ा लंबा सा राहत का सांस लिया और स्टेशन पे उतर गया। तब समझा, बाप रे बाप, अगले बार से इतना अंदर जाके ऐसा बैठना नहीं है मुझे जाके, समझ रहे? तो दिस इज हाउ अरे वो ओके, वेरी 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 डिफिकल्ट, इल्यूजनरी, दिस मटेरियल एंजॉयमेंट। लगता है सीट पे बैठूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लोकल मेंटालिटी वो सीट पे जाके सीट पे करना है, सीट पे बैठना है। टेम्पररी, इल्यूजरी एंड फुल ऑफ मिजरी। याद रखिए, मटेरियल एंजॉयमेंट विदाउट एनलाइटमेंट इज व्हाट? बोलिए। मिजरेबल, टेम्पररी एंड इल्यूजरी। full of miseries. Okay, so this is how क्या बोलते हैं, people think, and then coming to our, I'll take you to another slide. Viraj हो गया, then correct, ये चीज तो मैं बोला था आपको, राइट? Material pleasure is misery, acquire full of miseries. ओके, तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिए। This time, TIME, okay, temporary, this material enjoyment without enlightenment is temporary, illusory, miserable enjoyment. Remember this formula, time. और ये टाइम ही कृष्णा है, कृष्णा बोल रहे हैं। अगर आप कृष्णा का शरणागति नहीं होंगे तो दिस टाइम विल बी मटेरियल, illusion and miserable for you, ठीक है? So this spiritual pleasure, spiritual pleasure is completely opposite of this. Temporary का opposite क्या है? Permanent. Illusory का opposite क्या है? रियल। करेक्ट। और miserable का opposite क्या है? प्लेजरेबल और happiness. So this Krishna consciousness, this spiritual pleasure is permanent. परमानेंट क्यों है spiritual pleasure को बता सकता है? Why is spiritual pleasure permanent? because it is carried forward with soul. Correct. So because soul is permanent, है ना, आत्मा permanent है, इसीलिए the happiness derived from the soul is also permanent. Okay, then Krishna is permanent, कृष्ण भगवान ही permanent है. So when Krishna is permanent, soul is permanent, so the happiness derived from Krishna consciousness is also permanent. तो एक बार क्या हुआ था, एक आदमी ना, एक रिपोर्टर या कोई आदमी था, वो प्रभुपाद को आके बोला कि प्रभुपाद, अगर आप इतना हरे कृष्णा कर रहे हैं, पूरे दुनिया में आप घूम रहे हैं, सब अलग अलग जाति धर्म सब लोग को कृष्णा के बारे में बोल रहे हैं, सो अगर मौत के बाद आपको पता चला कि कृष्णा नहीं है तो क्या होगा?
प्रभुपाद तो क्वेश्चन पूछा ऐसे रिपोर्टर, अगर आपका मौत का पता चला कृष्ण नहीं तो क्या होगा? तो प्रभुपाद बोले तो क्या होगा, हम लोग तो मंदिर में रह रहे हैं, मार्बल फ्लोरिंग का मंदिर है, इतना अच्छे मंदिर में रह रहे हैं, 3 बार का प्रसाद मिलता है, इतना टेस्टी फीस्ट आप लोग तो खाई है, 3 बार का प्रसाद, अच्छा सोने को मिलता है ना? फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, हम लोग डांस करते हैं दिन में 3 बार, म्यूजिक है, कीर्तन है, इतना सब भक्त एंजॉय कर रहे हैं मंदिर में। तो अगर कृष्णा नहीं है तो भी हम लोग एंजॉय किए हैं, अच्छा जिंदगी पूरा मजा किए हैं, एंजॉय किए, खा के पी के, डिवोटीज आर मोर हेल्दी, कोई बीमारी नहीं है, बहुत हेल्दी है डिवोटीज, हेल्दी एंड वेरी हाइजीनिक, इतना सब करके, कपड़े का कमी नहीं है, कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज देयर नाइसली, कृष्णा आपका पूरा ख्याल रख रहा है, तो इतना सब किए हैं। तो अगर मर भी जाएंगे तो जिंदगी अच्छा जी के ही मरे हैं, पर अगर आप मर गए और अगर पता चला कृष्णा है मरने के बाद, तब तेरा क्या होगा रे कालिया? पूरा जिंदगी खट के मेहनत करके लोकल ट्रेन में जाके यहाँ वहां पे जाके मेहनत किया, मरने के बाद कृष्णा है, फिर से जन्म लेके आओ। हम लोग पूरी जिंदगी एंजॉय किए, भक्ति किए, मरने के बाद कृष्णा है, कृष्णा के बाद फिर चले जाओ, है ना? तो दिस इज हाउ दिस enjoyment with enlightenment is real, it is not illusory, ओके? तो ये तो बोलते हैं संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, और मर जाने के बाद खाओ यमराज के गरम गरम डंडे, वही होने वाला है। हरी बोल, ना भी ये लोग सब हरी एडवर्टाइजमेंट बोल। करते हैं मेटेरियल वर्ल्ड में, कहाँ पर जगह, वहीं पर तो जाएगा नरक में जाके, वही उसका ये है, बिकॉज देयर इज नो एनलाइटनमेंट, एंजॉय कर रहा है विदाउट एनलाइटनमेंट, दिस इज द प्रॉब्लम। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस, हैप्पीनेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस gives you enjoyment with enlightenment, प्रभुपाद ये बात बोले थे। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल, सिंपल चीज, जो प्रसाद हम लोग खाते हैं, प्रसाद हम खाते हैं, तो व्हाट इज प्रसादम? कैन एनीवन से प्रसादम क्या है? वी एंजॉय सो मच टेस्टी फीस्ट Remnants of प्रसादम, Krishna. okay? Remnants of Krishna, Prabhu. Okay, remnants of Krishna. Anyone else? For soul. Food for soul. Food for soul. कौन बोले food for soul? तरुण। Tarun, Hare Krishna. Okay. और anyone else? What is प्रसाद? इतना बार प्रसाद खाया है मंदिर में, आपको इतना प्रसाद खिलाते हैं, प्रसाद क्या है? Paap free food. Krishna's mercy. Correct. It is Krishna's mercy. Food free from sin, or you can say sanctified food. तो ये क्या प्रसाद जो है ना, जो आप खाते प्रसाद है, तो आप लोग को सब पता है कि अगर आप कोई बाहर का खाना खाएंगे कुक्ड बाय नॉन डिवोटीज, तो 6 लोगों का कर्म उसके अंदर आएगा, 6 लोगों का। जो आदमी वो बीज को जमीन में बोया है, जो उसको हार्वेस्टिंग किया है, जो उसको पढ़ के उसको वहां से उसको काट के निकाला है, फिर जो ट्रेडर उसको ट्रेड किया है, दुकान वाला उसको बेचा है, और जो आदमी उसको पकाया है, तो जो 6 लोगों का पूरा जो कर्म है ना, ये उस अन्न में आ गया, उस खाने में आ गया। और जब आप लोग खाना खाएंगे ना, तो ये सब लोगों का जो पाप पुण्य जो भी है, वो भी आप कर्म भी आपके अंदर जा रहा है। तो भी आके बोलते हैं कि प्रभु जी हमने तो कुछ भी नहीं किया, इतना परेशानी आ गई हमारे लाइफ में, हमने किसी का कुछ बुरा नहीं किया है। अरे तुमने तो 6 लोगों का पाप खा रहे हो रोज, तो रिएक्शन तो मिलेगा ही ना तुमको। तो जो प्रसाद है, दिस इज लाइक अ वैक्सीन, एक वैक्सीन कैसे काम करता है प्रसाद। जब आप प्रसाद, जब खाना बना के जब आप भोग भगवान को लगाते हैं, कृष्णा भगवान इज सो मर्सीफुल, इतने दयालु, इतने कंपैशनेट है कि ही विल जस्ट टेस्ट द लव, इतने प्रेम से आप उनको भोग लगा रहे हो, और उसमें सब पाप कृष्ण भगवान निकाल देंगे। और जो फिर जो प्रसाद बन जाते हैं उनका रेमिनेंट्स जो आपको देते हैं, दैट विल एक्ट लाइक अ वैक्सीन। प्रसाद खाने से आपका जितना पाप बॉडी का पाप भी निकल जाएगा, और जो पाप आपको मिलने वाला तो वो भी निकल जाएगा, एंड इट विल एक्ट एज अ वैक्सीन इन द सेंस, देन जो भी बुराइयां है, जो रॉन्ग हम लोग जो मेटेरियल वर्ल्ड में जो हम लोग को जो एसोसिएशन जो मेंटल इम्पैक्ट पड़ता है, दैट विल नॉट हैपन टू यू दैट मच। आपने एक्सपीरियंस किया है रिकी प्रभु? घर में प्रसाद बंद करे तो कैसे हो गया घर में? So this is very very important. So prasad is just like a vaccination. So
You are enjoying prasadam, you're enlightened, and you're enjoying. So enjoyment with enlightenment. So how much good it is. Okay, so that is what devotees are doing. We are chanting, we are dancing, we are feasting prasadam, and this is a very very powerful purificatory process. Purification हो रहा है कि नहीं आपका प्रलय प्रभु? Purification हो रहा है ना? This is how we all get purified. तो ये जो हमारा एंटायर जो यूथ कम्युनिटी है ना, ये इतना बेवकूफ़ों के जैसे एंजॉयमेंट के पीछे भाग रहा है. जैसे मैं बोला था ना, जब प्रभुपाद पहली बार अमेरिका में गए थे, उनको अमेरिका का इतना सब क्या बोलते फास्ट लगते कंपैशन हुए प्रभुपाद कि कितना लोग सफर कर रहे हैं. वही अगर कोई और आदमी जाएगा अमेरिका में, वो वहां पर देख के और खुश होगा, अरे वाह अमेरिका में आ गया, अब मैं और मेहनत करूँ गधे के जैसे. बस वही करेगा. वही तो इंडिया में हो रहा है. जितने भी सिटीज में इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, गांव से बच्चे वहां पर आते हैं पढ़ने के लिए. जैसे गांव से आएंगे, जो शहर का जो चमक धमक है वो देख के वो भूल ही जाएंगे कि गांव का कल्चर अच्छा था, और फिर से एक रैट रेस में घुस जाएंगे हैप्पीनेस के तलाश में. ये एंजॉय वो एंजॉय कर, सब टेम्पोररी, टेम्पोररी, इल्यूजरी एंड फुल ऑफ मिजरी कर करके पूरा जिंदगी बर्बाद कर देंगे. बिकॉज कृष्णा इज नॉट देयर. तो समझ पाए राइट? वाई प्रभुपाद का व्यू, एंगल ऑफ व्यू वॉज डिफरेंट कंपेयर टू अदर पीपल, बिकॉज Krishna was there with Prabhupada. He was chanting, he was hearing, he was taking Krishna with him. That's why उनका व्यू पॉइंट अलग था. वही बाहर के लोग के लाइफ में कृष्णा नहीं है. So that's why व्यू पॉइंट is just enjoying mentality without enlightenment, and then full of suffering. So एक क्या बोलते हैं, one boy was asking that this ये सब जो भक्ति है ना प्रभु, हम लोग we just do some preaching in the college. तो लोग बोलते हैं कि ऐसे भक्ति भी तो बुढ़ापे में भी किया जा सकता है ना प्रभु, अभी क्यों करेंगे भक्ति, बुढ़ापे में किया जा सकता है. तो आप एक बात मुझे बताइए, कौन सा कॉलेज बुढ़े लोगों को एडमिशन देता है? कॉलेज देता है बुढ़े लोगों को एडमिशन? देता है क्या? नहीं देता है ना. क्यों नहीं देता है? उम्र ज्यादा हो गया, ठीक है, पर एडमिशन क्यों देता नहीं? माता जी क्यों देता नहीं बुढ़े लोगों को एडमिशन? कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी? होता नहीं है. क्या नहीं होता है? इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस तो होता है, पर एडमिशन देता क्यों बट नहीं? नो दे कांट रिमेंबर. मेमोरी पावर वीक है. मेमोरी कमजोर हो गया है. एनीवन एल्स? बापी प्रभु, बूढ़े लोग का एडमिशन क्यों देता नहीं है कॉलेज? बुढ़ा लोग का ऐसे भी उन लोग का जी नहीं रहता, क्योंकि उनका लर्निंग कैपेसिटी खत्म हो जाता है पूरा. लर्निंग कैपेसिटी, यस ब्रो, दैट इज द मेन थिंग. ये हमारे जो सुमित प्रभु जो वॉइस में रहते हैं ना, हम लोग जो पहले दूसरे फ्लैट में रहते थे, वहां पर एक प्रमोद प्रभु जो थे, वो अच्छे डिवोटी थे, अच्छे डिवोटी है अभी भी. तो उनकी माता जी वहां पर रहती. शी इज वेरी वेरी ओल्ड, मे बी 65-70 ईयर्स उनका एज रहेगा शायद से. तो सुमित प्रभु जाके उनको सिखाए कि देखिए युग धर्म कलयुग का है हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ऐसे सिखाए हरे कृष्णा जप करना है. तो माता जी क्या करिए, हरे कृष्णा राम राम कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा राम राम हरे हरे. तो उतना सिखाने के बाद भी उनको समझ में नहीं आ रहा है, लर्निंग कैपेसिटी चला गया. because जब मेमोरी है, they are not able to grasp it, even a simple हरे कृष्ण महामंत्र. एवरीडे वो जाके सिखा रहे कि 16 शब्द है, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, पर नहीं, वो जंबल कर रही है, कभी हरे भूल जा रही है, कभी राम भूल जा रही है. ओके, सो पूरा लाइफ में आपने सेंस ग्रेटिफिकेशन किया है, इंद्रिय तृप्ति किया है पूरा लाइफ में, ये वो गलत गलत चीजें किए हैं, इतना सिंफुल एक्टिविटीज किया है, और आपका हार्ड डिस्क फुल कर दिया पाप से, सिंफुल एक्टिविटी से, पूरा कचरा कूड़ा भरा, गार्बेज भरा हुआ है आपके दिमाग में. तो अभी जब बुढ़ापे में मेमोरी तो फुल हो गया आपका कचरे से, अब बुढ़ापे में जाके बोलेंगे भक्ति करो, तो अंदर जाएगा क्या भक्ति? हाँ जाएगा? आप लोग से पूछ रहा हूं मैं. नहीं प्रभु जी, नहीं जाएगा. As simple as that. So how can you insert something good when there is no space to insert only?
तो अगर आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे अगले बार ये कि बुढ़ापे में भक्ति करो, तो यू कैन से दिस थिंग टू योर पेरेंट्स, ओके, इन अ लविंग वे, ठीक है। सो यूथ लाइफ इज मेंट फॉर एनलाइटनमेंट विथ एंजॉयमेंट, नॉट विदाउट एंजॉयमेंट, सॉरी विदाउट एंजॉयमेंट विथ एनलाइटनमेंट, ठीक है। तो अभी आप सब लोग का लाइफ स्टार्ट हुआ है, वी आर ऑल वेरी यंग नाउ, शक्ति है बॉडी में, एनर्जी है, एंथुजियाज्म है, खून गर्म है, वी आर ऑल लुकिंग फॉर डेवलपमेंट। कुछ तो करेंगे लाइफ में, कुछ करना है जिंदगी में, सबके मन में ये है, जॉब करेंगे, मेहनत करेंगे, कुछ तो करना है जिंदगी में, है ना। दिस इज द करेक्ट टाइम, इन दिस टाइम वी कैन शेप आवर पर्सनैलिटी। जैसे कि आप लोगों ने बम्बू का चेयर देखा होगा, राइट, बैम्बू चेयर्स जो होता है, बांस का चेयर, वो सब, तो वो सब कैसे बनाते हैं, वो पता है किसी को कैसे बनाते हैं? अनंत लोहिया प्रभु, नहीं प्रभु जी, नहीं पता। किसे पता है बाम्बू का चेयर्स और जो फर्नीचर कैसे बनाते हैं? एनीवन? वो प्रभु बाम्बू सब पहले से वो जो क्या बोले प्रभु जी, बाहर वाला सब छाट देता है प्रभु जी, ठीक है। जो ओके, वो एक्चुअली हिंदी टर्म अच्छा नहीं आता है, छोटा वाला कुंची किंची बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं पता नहीं। ओके, तो ये जो, ठीक है मैं बोल रहा हूँ, ये जो बम्बू का जो फर्नीचर बनाते हैं ना, ये सब कच्चे बम्बू से बनाते हैं, रॉ बम्बू, कि रॉ बम्बू इज फ्लेक्सिबल, यू कैन बेंड इट एंड यू कैन मेक इट। वही अगर कोई बुढ़ा बम्बू है सूखा हुआ, उसे बेंड कर पाएंगे क्या? हाँ, टूट जाएगा वो। सो इन दिस वे, दिस यूथ एज, अभी जो हम लोग हमारे 20s में हैं, वी आर यंग नाउ, सो दिस इज द टाइम टू व्हाट यू से पॉलिश आवर सेल्फ, टू गिव अ शेप टू अवर पर्सनैलिटी। जैसे कि जो ईंट से हम लोग घर बनाते हैं, हाँ, तो जो ईंट को शेप कब दिया जाता है? मिट्टी में शेप देते हैं ना, कच्ची मिट्टी को वी गिव अ शेप, तभी उसे ईंट बनता है। अगर पका हुआ मिट्टी से कुछ ईंट बनेगा, कुछ शेप चेंज कर पाएंगे उसका? नहीं कर पाएंगे, राइट। सो इन दिस वे, इन यूथ एज वी कैन, क्या बोलते हैं, हमारा जो बर्निंग फायर है यूथ एज का, एनर्जी, एंथुजियाज्म, सो इसको हम लोग शेप दे सकते हैं, ओल्ड एज में दे नहीं पाएंगे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दिस इज व्हाट इस्कॉन इज ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट। अभी आप लोग इस्कॉन मंदिर कलकत्ता में आए हैं, अलग अलग मंदिर, वृंदावन में गए, मायापुर में आए हैं, तो कितने लोग इस्कॉन में, आप जब आए थे तो यंग थे कि बूढ़े लोग दिखे आपको इस्कॉन में? विकी प्रभु बोल रहे यंग, प्रलय प्रभु मैक्सिमम यंग, एनीबडी एल्स? You went to so many ISKCON temples, so did you see maximum old people or young people or what? Maximum youth, Prabhu. Correct. So maximum youth you have seen here in ISKCON, okay? So all are young. तो प्रभुपाद ने बोला है कि ISKCON कोई ऐसे जगह नहीं है कि कोई खाली मंदिर है, वहां पे कबूतर आके टट्टी कर देगा और पुजारी आके मंदिर में थोड़ा घंटी पे आके दक्षिणा लेके भाग जाएगा। ये ISKCON मंदिर नहीं है, ठीक है। ISKCOन इज एन इंस्टीट्यूट जहाँ पे सिखाया जाता है कि कैसे भक्ति करके भगवान के वापस जाया जाए। दिस इज द पर्पस ऑफ ISKCON इंस्टीट्यूट। दिस इज व्हाट प्रभुपाद इज टीचिंग, सो दैट वी कैन ट्रेन आवर लाइफ्स, हमारे यूथ लाइफ को ट्रेन करके वी कैन एनलाइटन आवर सेल्व्स, एंजॉय आवर लाइफ एंड गो बैक टू कृष्णा। दिस इज व्हाई प्रभुपाद हैज इम्प्लीमेंटेड ISKCON। ISKCOन इज अ यूथ मूवमेंट, यूथ लोगों ने स्टार्ट किया है ISKCON। All the American young youth enthusiastic, Prabhupada gave a shape to them, and this is how we are now visiting Mayapur. So beautiful temples everywhere. Okay, so training will not happen in old age. Training will happen now. This is the correct time. ठीक है, पर हम लोग ये देख नहीं पा रहे हैं। अगर बुढ़ापे में अगर बोलेंगे किसी को कि भावगीता पढ़ लो, दादी माँ थोड़ा भावगीता पढ़ लो, बेटा आंखों को दिख नहीं पा रहा है, नहीं पढ़ पाएंगे। थोड़ा आ जाइए, हम लोग थोड़ा कैंप कर रहे हैं, मायापुर में जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ आइए। अरे हम बेडरूम से बाथरूम नहीं जा पाते तो कैंप में कैसे आएंगे? देखिए कितना बुढ़ापे में ओल्ड। भगवान का दर्शन ले लीजिए, चश्मा का नंबर बड़ा हो गया है, मोती बिंदु हो गया आंख में, देख नहीं पाते हैं, घुटने दर्द हो रहे, डांस नहीं कर पाएंगे। टेस्टी प्रसाद है,
इतना अच्छा टेस्टी प्रसाद, पनीर, पिज्जा और जो भी पास्ता है, बढ़िया बढ़िया प्रसाद खा नहीं पाएंगे। खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा, लूज मोशंस हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा, डाइजेस्टिव पावर कम हो गया है। तो क्या भक्ति का आनंद आप ले पाएंगे क्या? कैन यू प्रैक्टिस भक्ति इन ओल्ड एज? हाँ, नहीं ना? No, So in Prabhuji. this way, it is very very important in our youth age to shape ourselves to practice bhakti. Okay, very very important. और मेस और हॉस्टल में जो हम लोग देखते हैं, हम लोग बच्चों को बुलाते हैं, फोन करते हैं, 10 बजे तक गटर में पड़ा हुआ है, सो रहा है वहां पर, 10 बजे तक। और ड्यूटीज क्या करे वॉइस में? सुबह सुबह उठ के भगवान के नाचते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, fully enthusiastic, every drop of energy used for Krishna, taking tasty feasting prasadam. So this is how means voice is giving all this good opportunity to all the youths. जो प्रभुपाद ने पूरा इंडिया में और all over the world these facilities are available. So enjoyment with enlightenment is the privilege of youth age, not old age. बात याद रखिए, enjoyment with enlightenment is the privilege of youth, because you cannot remove your garbage out of your mind. कूड़े को निकाल नहीं पाएंगे बुढ़ापे में, हार्ड डिस्क फुल हो गया है, बैटरी डाउन हो गया है, लैपटॉप आपका जो हार्ड डिस्क काम नहीं करेगा, ठीक है? यही आपको एग्जाम्पल दिखाने में मिला था, राइट? हमारा जो लास्ट सेशन मायापुर में हम लोग गए थे हुआ था, भक्ति विघ्न नरसिंह स्वामी महाराज, ही इज इंजीनियर, उन्होंने इंजीनियरिंग किया 1960s में, एंड प्रभुपाद शेप्ड हिज यूथ, ही रेड भाव गीता, हरे कृष्णा मंत्र का जप किया। अभी देखिए बुढ़ापे में ही स्टिल हैप्पी। डिड यू एवर फील, आपने महाराज का क्लास सुना, कभी आपको लगा कि महाराज निराश है विद द बॉडीली पेन्स एंड ऑल दोस थिंग्स? हाँ, कभी आपको लगा बात? सौरभ प्रभु, did you feel that? Tarun Prabhu, Varun Prabhu, did you feel that any time? No, Prabhu. No, right? So this is because he practiced bhakti in his youth age. जय पताका स्वामी गुरु महाराज, बॉडी का हर एक पार्ट में प्रॉब्लम है, पैरालिसिस हो गया है, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, हर टाइम इंजेक्शन देना पड़ता है, खुद से खा नहीं पाते हैं, खुद से टॉयलेट बाथरूम जा नहीं पाते हैं, खुद से सो नहीं पाते हैं, इनफैक्ट खुद का पलके भी बंद नहीं कर सकते, इतना हाफ बॉडी पैरालाइज्ड है। इसके बाद भी ही इज सो हैप्पी नाउ because he has practiced Krishna consciousness in his youth age. That is the reason he is happy. Enlightenment with enjoyment. This enjoyment is real, permanent and full of bliss. Okay. So now is the time. अगर आप इस लाइफ में इस एज में नहीं करेंगे ना, if you not practice now, then the old age will be very very miserable for you. You cannot remember Krishna in your old age. You will remember only your pains. घुटने दर्द हो रहे हैं, मसूड़े दर्द हो रहे हैं, आंख दिख नहीं रहा है, विल जस्ट रिमेंबर दैट, और वो देख के फिर से नाम लेके आना पड़ेगा आपको। ओके, सो दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक दिस लाइफ सीरियसली। सो आई एंड ओवर हियर, कंक्लूड द सेशन। सो अगर आपको कोई कमेंट्स है, क्वेश्चन है, यू कैन आस्क नाउ। कोई क्वेश्चन, कमेंट, एनीवन? Prabhuji, very nice class, very interactive, very interesting, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Okay, Prabhupada का कृपा था। Any questions, any comments? प्रभु मेरा एक क्वेश्चन है। तो प्रभु लाइक आफ्टर डेथ वो सोल जो है वो प्रभु मतलब पहले हेवन नहीं तो फिर नहीं तो पहले नरक में जाता है, उसके बाद वहां से निकल के दूसरे बॉडी में आता है कि प्रभु मतलब आफ्टर दैट सीधा सोल दूसरे बॉडी में चला जाता है? डिपेंड्स अपॉन द सोल। अगर वो सोल पूरा लाइफ कृष्ण नगर लोकल में जाके धक्का मार मार के काम करेगा या फिर गधे के जैसे गाजर पे जाएगा तो नरक में जाएगा पहले और फिर से यहीं पर आएगा, नरक में जाके सब 84 मिलियन स्पीसीज घूम के फिर यहीं पर आएगा। अगर वो सोल भक्ति करेगा अच्छे से, लाइक द एग्जांपल्स वी हैव, जयपति स्वामी गुरु महाराज, भक्ति दिस नरसिंह स्वामी महाराज,
then you directly go back to spiritual world. और एक और कैटेगरी है pious people, पुण्य कमाएंगे, जो पुण्य कमाए, जैसे वो एग्जांपल दिखाया था ना फोटो आपको, वो आदमी लटक रहा है, ऊपर ऊपर शेर है, वो शेर मतलब क्या है, नीचे तो मौत है ही, सांप है नीचे, मरने वाला है, हर दिन मौत हो रही है। शेर मतलब क्या, पुण्य कमाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में कुछ टाइम के लिए एंजॉय करेंगे, फिर मर के फिर से अर्थ में ही आएंगे, फिर से सफरिंग करना ही यहाँ पर। ओके, सो डिपेंड्स ऑन व्हाट पाथ यू चूज। ठीक है, ओके प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एनी अदर क्वेश्चन? प्रियंका माता जी, दीपशिखर, कृतिका माता जी, सिद्धार्थ प्रभु, तरुण, वरुण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी जय पताका महाराज जी तो अनेक बहुत बहुत पहले से बहुत यंग से ज्वाइन किया, तो फिर भी इतना बीमारी क्यों होता है प्रभु जी? सी बीमारी, कृष्णा ना, जो कृष्णा के शुद्ध भक्त है ना, कृष्णा, हाँ प्रभु जी। हाँ, सो कृष्णा इज लाइक ट्राइंग टू शो अस फ्रॉम हिज एग्जाम्पल कि इतना उनको बीमारियां होने के बाद भी वो अभी भी खुश है। इज गाइडिंग सो मेनी पीपल, इज मेकिंग एवरीवन हैप्पी। इट मींस दैट ही हैज ओवरकम डेथ, मृत्यु को हरा दिया। उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल, प्रैक्टिकली सबके आंखों के सामने। भक्ति करने का रिजल्ट ये मिलेगा आपको। मतलब इवन आई एम नॉट सेइंग कि आपको बीमारी आएंगी, आई एम नॉट सेइंग इन मटेरियल प्लेटफॉर्म, आई एम सेइंग स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, कि आपका कोई हादसा भी होगा, कुछ भी होगा, इफ यू बिकम हैंडीकैप, कुछ भी हो जाएगा, बट स्टिल यू विल बी हैप्पी, यू विल एंजॉय बिकॉज यू आर एनलाइटेंड इन योर यूथ एज। ओके, so Krishna will choose some pure souls like that who can tolerate this thing and who can show us their example. ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। any other questions, comments? आप लोग क्वेश्चन है? रिकी प्रभु, पहले प्रभु, नींद आ रहा है आप लोग को? ओके, ठीक है, so I'll call Mahadam Prabhu now, then we'll celebrate the birthday of our dear। आपके सेशन से है तो बोलिए, सेशन से कोई क्वेश्चन है तो आप बोलिए, otherwise I will stop now and we'll celebrate our dear Siddharth Prabhu's birthday. Okay, To you. Hari Bol. सारे Hare Krishna. प्रभु आपके लिए और सारे बॉयज Hare Krishna. के लिए। Everybody. Hare Krishna. हरे Krishna कृष्ण, Krishna. Hare कृष्णा Hare. कृष्ण, Hare Rama. हरे Hare Rama. Rama हरे Rama. राम, Hare राम राम, हरे हरे। So, on behalf of all voice devotees and on behalf of all our students from different batch, I wish happy Krishna conscious birthday to Siddharth Prabhu. So, the human form of life is very, very precious, because in this human form of life, we get opportunity to re-establish our eternal relationship with the Supreme Lord, Sri Krishna. So the soul is transmigrating 84 lakhs of species in the river of time. I was hearing one lecture of His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj. Maharaj was speaking that time is like a river, and we are flowing with the river of time from one body to another body, and another body to another body, and another body to another body. And in this different kind of body, most of the body, we do not know who we are. What is the purpose of life? Why I am changing my body? But in the human form of birth, in some of the human form of birth, we come in contact with the devotees of the Lord. And we come to know that we are not this body. We are soul
part and parcel of Krishna. And then our human life begins with spiritual inquiry. Our human life begins with the practice of Krishna consciousness. When a devotee, when he is flowing with the rivers of time, comes in contact with the devotees and understand his original position, that I am servant of Krishna, and the purpose of human life is to go back to the spiritual world, is to stop this repetition of birth and death, then his human birth becomes successful. When birthday comes, we should remember that how many years I have already passed. Maharaj was speaking. And when birthday comes, we should remember that how many years we have already passed. Like when somebody asks, what is your age? We say 25 years old. I am 25 years old. We don't say that I am 25 years young. We don't say that I am 25 or 30 years young. We say I am 25 years old. That means 25 years already I have passed. 25 years already I have lost. And I don't know how many years I have still in my hand. And therefore, a devotee, wherever he may be, whatever material background he may be, he should take this process of Krishna consciousness seriously, so that he can go back to the spiritual world in this lifetime. And when birthday comes, he should collect, he should count what are the gift he have received by the mercy of Guru, by the mercy of devotees, and by the mercy of Krishna. Krishna have sent many gifts in our life, but are we recognizing those gifts in our life? Krishna gives many opportunity to us so that we can go back to Krishna. But many times we forget those gifts. बहुत बार कृष्ण की कृपा हम लोग भूल जाते हैं. कृष्ण अलग अलग प्रकार से हमारे पास पहुंचाते हैं. तो जब जन्मदिन आता है, जब एक साल बीत जाता है, तो हमें काउंट करना चाहिए, देखना चाहिए कि कृष्ण के क्या क्या गिफ्ट हमें मिला है और हम उसका कितना सदुपयोग किए हैं. हम भक्ति के मार्ग में कितना आगे बढ़े हैं और हमें कितना आगे जाना है. In that way we can see our advancement, we can check our advancement, and we can come out with proper conclusion that this I should perform to make my human birth, this birth, successful. This birth is special because this birth I came in contact with the devotees. This birth I got opportunity to practice Krishna consciousness. That is why it is special. Because we got Krishna in my life. Otherwise, what is a special? Because it is another birth. So it is special because Krishna have given me opportunity, and I'll offer this life to Krishna. So I wish Siddharth Prabhu for this birthday. May Krishna bless profusely Siddharth Prabhu and his family members, his father, mother, sister, relatives, everyone, so that everybody become devotee of Krishna, and everybody practice Krishna consciousness sincerely. So I am very grateful for कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. So I am very grateful for क्या हो गया अक्षय प्रभु, क्या हो गया? I am very grateful to Siddharth Prabhu for all the services which he have rendered, especially taking care of to Siddharth Prabhu. ज्वाइन कर गए लग रहा है.
प्रभु जी ज्वाइन कर गए. हरे कृष्णा. I'll take two more Yes, yes, minutes प्रभु जी. और 2 मिनट लूंगा आप सबका. I'm very thankful to Yes, yes, Siddharth प्रभु Prabhu जी. for all the services he have rendered, especially taking care of some boys and making the slide for different batches, classes. Then All your mercy, Prabhu. All your mercy. Thank you for giving me opportunity. Always, Prabhu. offering some donation for the preaching of Krishna consciousness movement. So I'm very thankful for all the services which Siddharth Prabhu rendered, and I pray that he can serve more sincerely by the mercy of Srila Prabhupada, by the mercy of Guru Parampara, and he make this human life successful by getting initiation, by practicing Krishna consciousness along with his career. So we have some small gift to Siddharth Prabhu. Oh, thank you, Prabhu. Thank you so much, Prabhu. Oh, Hari Bol. Hari Bol. Thank you, Prabhu. I was actually requesting for calendar. Thank you so much, Prabhu. Wow. Wow. Yes, Prabhu. So beautiful. Thank you, Prabhu. So this is New Year calendar. ये जाएगा मेरे बेडरूम में, प्रभु. वाओ. जय जय श्री राधा माधव. जय जय श्री राधा गोविंद देव जी. Yes, so beautiful. Jai Jagannath. Jai Jagannath. So this is 12th year calendar. It is a small gift to you and to your family in your birthday. Also, Thank you, a Prabhu. small gift कृष्ण की ओर. आप कैसे कृष्ण के पास जा सकते Hari हैं. Bol. Hari Bol. Also we have Thank you, Prabhu. special sweet for you. Hari Bol. Hari Bol. So this is a special Bengali sweet. It is called pitha. Oh, lovely. Lovely, lovely. So this is special sweet. It is very famous in Bengal. It is called Dudh Pitha. दूध पीठा. Dudh Pita. Thank you, I Prabhu. request you to eat. Hari Bol. Yes, yes, Prabhu. Yes, Prabhu. दिखाई दे रहे हैं? हाँ, प्रभु. Hare Krishna. Today Siddharth was Hare birthday Krishna, was. Prabhu. Thank you. Thank you, Prabhu. Okay. प्रभु, आप मेरे को एक पिज्जा फीस्ट बोले हैं, वो मैं नोट कर लिया हूँ, तो प्रभु. मैं जोक किया. आफ्टर नहीं प्रभु, प्लीज प्रभु. मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दीजिए प्रभु, प्लीज प्रभु. Okay. तो मेरा बर्थडे है. So, ये Akshay Prabhu will distribute on behalf of you. आपको Akshay खाली will दिखा रहा हूँ, distribute खिला to नहीं all चाह the रहा हूँ. devotees. Okay, thank you, Prabhu. Prabhu, this cake is also due, Prabhu, for every devotee. Hari Bol. सब वॉइस डिवोटीज आपके लिए. Yes, Prabhu. So if you come to Thank you Mayapur for camp, celebrating my birthday in such a grand way, Prabhu. My mother is so happy. Thank you for celebrating my birthday in such a grand way, Prabhu. We are so grateful to have your association, Prabhu. आप कभी प्लीज में हम लोग को छोड़िएगा मत. आपका आशीर्वाद हम लोग के ऊपर बना रहे प्रभु हमेशा. तो हम लोग भी थोड़े पापी लोग हैं, थोड़ा सा भक्ति में आगे बढ़ सके प्रभु. Thank so you, if you Prabhu. like to speak 2-3 minutes, you can speak about your spiritual life and realizations and your birthday. Something you would like to speak, you can speak. Or if your mother likes to Yes, speak Prabhu. something. यस प्रभु. तो प्रभु मैं छोटा सा एक चीज बोलता हूँ कि मेरे को भक्ति में प्रगति करने के लिए मेरी मम्मी बहुत हेल्प की है. मेरे घर में प्याज लहसुन मेरी मम्मी का हाथ है. मम्मी बंद करवा दी प्याज लहसुन. आई एम वेरी ग्रेटफुल. शी इज ऑल्सो डूइंग सर्विस, डीटी वर्शिप, भगवान का वस्त्र बदलना. And she has also learned how to offer from me, and she's still learning. और मैं भी मम्मी से बहुत कुछ सीख रहा हूँ. तो she is very helpful to me in my spiritual progress. Also, she makes sure everything is very nicely cooked for Krishna. कृष्णा को सेंटर करके खाना वाना बनाती है.
और भोग लगा करके ही हम लोग को देती हैं. So without my mother, I cannot progress in Krishna consciousness. I'm very grateful to her Haribol. for her for all her effort. Because हम लोग के घर में प्याज लहसुन छोड़ के खाना ही नहीं बनता था और अभी बनता है प्रभु. Haribol. Now Mataji has to start chanting. Yes, Prabhu, I have told her many times. So Little more mercy is so is required, it Prabhu. possible to in the birthday of Siddharth Prabhu you will start chanting? I'll try. How many rounds? Oh, Hari bol, Let me do one round pehle. Hari Two bol, rounds, two Prabhu. rounds. Not One one. round. Two is minimum. 2 rounds. 2 rounds. I'll try. Yeah, that I will Try consider. maybe. I will consider that is your gift to Siddharth Prabhu. If you chant minimum 2 rounds from his birthday, that will be your birthday gift to Siddharth Prabhu. Okay. That is real gift. करेगा मम्मी? कोशिश. When 2 माला. Promise. because actually Krishna is our original mother and father, and when our material relationship in this world help us to come closer to Krishna, then those material relationship become spiritual relationship. Otherwise material relationship is going to end after some years. But in that material relationship, if we help each other to remember Krishna, then that relationship is meaningful. So therefore, like as Siddharth Prabhu is chanting Hare Krishna, he's a devotee son, and definitely you are very fortunate that you have devotee son, and you are also devotee. But if you chant Hare Krishna now, then you become better devotee of Krishna. And chanting is the best process of practicing worshipping Krishna in this age of Kali. So without chanting Hare Krishna, nobody can go back to the spiritual world. And during the deity worship, we have some offenses to the deities, but that offenses get nullified by chanting Hare Krishna. So if you chant Hare Krishna, your offenses to the deities will be nullified. And therefore, many people cannot worship the deities because they are not qualified. But Krishna gave qualification to everyone to chant Hare Krishna. So by chanting Hare Krishna, you can progress in spiritual life much more faster and easier than other process. As Krishna is present in the form of deity, similarly Krishna is present in the form of his name. So his name is non-different from Krishna, and Lord Chaitanya Mahaprabhu have distributed this holy name. So I think it is very important for you. It will, if you chant Hare Krishna, that is best service you can do for your family, for your children, for your husband, and for everyone. So then our relationships are spiritual. Then our relationships are spiritual because we are inspiring each other to come closer to Krishna. Because we know Krishna is our father, Krishna is our mother, and we are all servant of Krishna. And this home is Krishna's home. But if we don't chant Hare Krishna, then we chant something else. So therefore, we have to engage our tongue in the service of Krishna. So I humbly request Siddharth Prabhu's mother to start 2 rounds in your birthday, and that will be real love for Siddharth Prabhu. So what is your I am asking you, what is your consideration? Asking me? I'll try. Not try. Not try. I'll try to do. Try words are not. Prabhupada says impossible words. Never promise anything which I feel I cannot do. Prabhupada says, and if okay, I don't do with all my heart, then I won't do. But if I feel that I can do with my heart in it, then I'll. So what Prabhupada says, I'm saying, Prabhupada says that impossible words in the foolish dictionary. So now I'm not saying it's impossible for me. I'm saying whether I can do with my heart, it's possible. But if I'm chanting, but I'm thinking about
something else, then I don't want to do. No. But if I feel, I'm giving my heart and mind both the things in it, then only I'm going to do, because I've got lots of responsibility in the house. So whenever I chant, I don't want to concentrate here and there. If I feel I can do, then only I will No, do. that is wrong understanding. That is wrong understanding. Prabhupada says, first you have to engage your tongue. And when you engage your tongue, then mind will come. Mind is more difficult to control. First you have to engage your body, then your mind will come. If you don't do that, then your mind is cheating you. Okay, I'll try. First you have to, suppose you are not feeling for cooking today. Will you not cook? You are not feeling, oh, I'll not cook today. Then I know my children and my husband is going to be that is the point. That is the point. Similarly, we may not feel to chant, but we have to know. I need to chant. My mind may not like it, but I need to chant, because by chanting only I can please Krishna. So I may like it or I may not like it, but Krishna likes it. Krishna likes it. Krishna will appreciate more if you chant Hare Krishna. And deity in the form of deity will reciprocate with you more if you chant Hare Krishna. The deity will reciprocate with you more if you chant Hare Krishna, and if you inspire others to chant Hare Krishna. So therefore we may like it, we may not like it. Many things we don't like, but which we are supposed to do. And many things we like which we do not supposed to do. Most of the things we are liking which actually we should not do. Yes, Prabhu. We should not go or liking or disliking. We should go what Shastra says. We should go what Krishna says. We should go with which Guru says. Then we are rightly going. So am I correct? Yes, Prabhu. Yes. So then what is your decision? I'll try. Again try. Okay. So from my side, I request you to chant at least 2 rounds, and when you chant 2 rounds, then only I will come to your home. I'll definitely do. हरी बोल प्रभु impossible has मतलब आप करवा दिए मनवा दिए. नहीं. Let's see Prabhu, I will give you accurate report. It is not just things to done. It is your love for Krishna. So don't take it as a burden. Don't take it as a burden. As you are doing your household activities, as a love for your children, as a love for your husband. Similarly, Krishna is your mother, Krishna is your father, Krishna is your children, Krishna is your everything. So do it as a love for Krishna. Don't do it as a burden that I have told you. Do it as a love for Krishna. That is the best you can do for Krishna. And when you do for Krishna, Krishna will see that Krishna will play in your home. Hari Bol. Prabhu, what I can help her is I will chant 2 rounds with her. Hari Bol. Initially, if you say Prabhu. I will chant with you and I will give you accurate report also, Prabhu. Whether she's chanting or not. No, it is not the report is important, but you should understand that chanting is your need. Every soul needs to chant. If your son is chanting Hare Krishna, he will go back to Godhead, but you will not go. So you should make sure that you are also going back to Godhead. Okay, I thank all the devotees to be with us and all the family members of Siddharth Prabhu. Thank you, Prabhu. Wish again happy Krishna conscious birthday to Siddharth Prabhu. Thank you. Hari Bol. Vancha kalpataru vasya kripa sindhu vacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo ki samaveta bhakta vrinda ki Gaur Premanande. Thank you so much, Prabhu. Thank you, Prabhu. आप सब लोग वीडियो में थोड़ा एक बार आ जाइए, सभी भक्त लोग. अच्छा. ओके. और थोड़ा विश कर दीजिए. Yes, participants. Thank you everybody for tolerating me for so long. किया ही नहीं. क्लास में नहीं आके दूसरी जगह में घूमने के लिए चले जाते हैं और इधर थोड़ा सा वीडियो में नहीं आ रहे हैं. सभी डिवोटीज थोड़ा वीडियो में आ जाइए, आपका दर्शन दीजिए. हरे कृष्णा.
हरे कृष्ण हरे कृष्ण सभी डिवोटीज हरे थोड़ा एक बार कृष्ण। वीडियो में आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भाई वरुण प्रभु दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ बैठा हुआ है? रो लाइट ऑन करो। अंधेरा है, सब सो रहे सब ये कौन है? सब सो रहे हैं लोग। सो रहे इतना जल्दी? हाँ प्रभु। बाकी लोग? राहुला, हैप्पी बर्थडे टू यू विराट। मिस यू वरुण प्रभु, लव यू सो मच, मिस यू वरुण प्रभु, जल्दी से वापस आइए, दर्शन दीजिए वरुण प्रभु। सिद्धार्थ प्रभु का 16 माला हो गया ना आज? जी प्रभु। बांटने में कुछ एक्स्ट्रा करिए। अच्छा प्रभु, पक्का। ओके, कोई वीडियो में नहीं आ रहा है, क्या करेंगे? नो प्रॉब्लम प्रभु, माय हार्टिएस्ट थैंक यू प्रभु टू ऑल द डिवोटीज जो अभी तक बने हुए हैं। थैंक यू प्रभु। आप मम्मी से वो इम्पॉसिबल चीज बुलवा दिए जो मैं कितना दिन से ट्राई कर रहा हूँ। शी इज गोइंग तो थैंक यू प्रभु, You थैंक यू inspire सो मच her. प्रभु फॉर योर मर्सी। You